एज अ स्टूडेंट आप बिल्कुल ज़ीरो से कैसे एक प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं? हाँ, सो मेरा सॉफ्टवेयर से उस वक्त कोई घंटा हाँ, ताल्लुक नहीं था, हाँ। राइट? सो हाँ, सॉफ्टवेयर का यहाँ तक ताल्लुक हुआ कि हमने कहा यार कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं टेस्टिंग को एंटर करने हाँ, के हाँ, लिए, हाँ। राइट? आज तक मुझे कोड लिखना तो नहीं आता, राइट? आई कांट राइट कोड। मैंने देखा है जब लोग डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो एज इट इज प्रोसेस को उठा के डिजिटाइज कर देते हैं। हाँ, That's wrong, right? That's not product thinking. That is IT thinking. You need to discover the market. You need to discover the user. अगर आप ऐसी प्यारी सी टेक्नोलॉजी बनाते हैं which nobody is going to use, so it's never going to work. Even outside of Pakistan, more developed markets में वैली के अंदर, UK के अंदर, Canada वगैरह के अंदर, there is not necessarily a traditional journey to get into product management. Right. In terms of growth, in terms of learning, in terms of even wealth, right? वो स्टार्टअप्स में इन कहीं ज़्यादा है। हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप 70% लोगों में से हैं जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हैं हमारे साथ मेरे दोस्त जिनके साथ हु आई मेट अबाउट सिक्स ईयर्स अगो। 2019, yeah. हाँ, तकरीबन 6 साल हो गए उनको जानते हुए। ग्रेट प्रोडक्ट मैनेजर दैट आई वर्कड विद, वेरी हाई एनर्जी, वेरी प्रोएक्टिव। उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अलावा भी ये 2-3 काम कर रहे हैं, तो उनसे ही पूछते हैं कि यार व्हाट ऑल इज़ डूइंग। और आज ये हमें बताएंगे कि एक स्टूडेंट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फॉर्मल एजुकेशन तो कोई है नहीं, तो एक पार्ट में हम इनसे पूछेंगे कि यार एज अ स्टूडेंट आप बिल्कुल ज़ीरो से कैसे एक प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ, Assalamualaikum. क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ग्रेट यार, ग्रेट टू फाइनली मीट। सबसे पहले बताएं आप अभी क्या कर रहे हैं आजकल? यार currently I am head of product at Glowfish Product Studio. हम अपने आप को एक product studio कहते हैं, which is a slightly different concept to the software house concept that exists in Pakistan. Of course, we do development, but we do quite a bit more than that. What we do is we work with early stage startup founders or any corporate looking to build a digital product or a digital venture. And we call ourselves the only agency that a founding team essentially needs. So we work with the founding team to figure out, based on their idea, what their product strategy should be, what the product's go-to-market should be, what the ideal customer profile is, figure out the product design, figure out what product to take to market to find out product market fit, and then we develop it and take it to market as well, right? So there's a lot of it's a lot more intimate and closer partnership than a typical software services vendor. And we've been working for the past, I think, about 7 years now in this space. We've built a number of startups in the MENA region. So yeah, it's a lot of fun and a very varied experience every few days. So yeah, that's what I'm doing these days. Uske alawa, I'm also one of the co-founders of Product Soch, which is the only community for Pakistani product professionals. And we have at this point about, I think, 4 or 5 chapters across the world. So we have a Pakistan mein 3 chapters, Karachi, Lahore, Islamabad. And we have a Dubai chapter. We have 2 chapters in Canada, and we are opening a chapter in Germany as well. So that's for the Pakistani, local professionals or the diaspora as well, so that they can learn from each other and grow and become better product people, whether designers, managers, or leaders. अच्छा, तो ग्लोफिश स्टूडियोज पे what is your job exactly? ठीक है, सो मैं हेड ऑफ प्रोडक्ट हूँ एट ग्लोफिश, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ग्लोफिश इज़ एन एजेंसी और एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी नहीं है। तो हेड ऑफ प्रोडक्ट एट ग्लोफिश प्रोडक्ट स्टूडियो में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा एक पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? एट एनी गिवन टाइम हमारे 3-4 प्रोडक्ट इंगेजमेंट्स चल रही होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ प्रोडक्ट्स हम मिलके बना रहे होते हैं। तो एक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें हमारी टीम, जो मेरी प्रोडक्ट मैनेजर्स और डिज़ाइनर्स वगैरह की टीम है, वो अलाइंड हैं विद द क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है और क्वालिटी ऑफ पार्टनरशिप जो हम एक हमारी विजन है उसके साथ अलाइनमेंट है।
in terms of जो हम outcomes client को provide कर रहे हैं in the product, right? जो like whatever जो उनसे एक्सपेक्टेशन सेट हुई है वो meet हो रही है कि नहीं? Exactly. दूसरी इसके अंदर obviously एक there is a people management role as well, right? मैं responsible हूँ for the product team and the design team. तो इसमें I have to ensure कि हमारी जो staffing है of the product team is to the quality के जो as a company हमारी vision है कि हम we're the best partner that a startup needs, उस level की partnership provide कर सकें हमारे clients को, right? Whether they're product managers or designers. और फिर उनकी recruitment, उनकी coaching, उनकी performance management from that side के to ensure कि हम जो हमें जिस किस्म की services provide करनी है वो provide कर सके. So that's the second thing. And the third thing is typically हम लोग जब initially involve होते हैं किसी भी potential client के साथ, so there's a बिल्कुल शुरू में एक phase होता है before the sale and immediately after the sale के जिसमें हम उनके साथ उनका आइडिया डिस्कवर करते हैं और उस आइडिया के अराउंड की मार्केट डिस्कवर करते हैं. उसमें मेरा ज़्यादा एक रोल होता है टू फ्लैश आउट बिल्कुल हाई लेवल अर्ली स्ट्रैटेजी विद द फाउंडर्स ताकि हमारी एक इनिशियल अलाइनमेंट हो जाए. देन आवर प्रोडक्ट टीम ऑफ कोर्स माशाल्लाह से वी हैव अ प्रीटी प्रोफेशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, तो दे टेक ओवर, बट इनिशियल फाउंडर्स के साथ अलाइनमेंट विद आवर CEO वो यूजुअली मैं करता हूँ. सो ये 3 वेरी हाई लेवल रोल्स हैं मेरे. ठीक है, ज़बरदस्त. Alright, and the next thing that takes most of your time is product सोच. ठीक है, तो product सोच Hopefully क्या अगर है? Glowfish वाले सुन रहे हैं, that's outside of work hours. हाँ, वो शाम को करते हैं हाँ, उसको, सुबह 9 to 6 is Glowfish. ठीक है. Alright, product सोच क्या है, क्यों शुरू की थी और अभी क्या कर रही है? प्रोडक्ट सोच essentially start हुआ था 2021 के अंदर और the idea was कि हम जितने भी प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स थे जो मार्केट में 4-5 साल से थे या कुछ थे इक्का दुक्का जो कि उससे भी पहले से थे, तो हम लोग बहुत ही एक डिफ़िकल्ट और थैंकलेस जर्नी से गुजरे थे कि जिसमें मार्केट में ऐसी पोजीशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. देयर वाज नो मेंटरशिप, देयर वाज नो एजुकेशन, देयर वाज नो क्लियर करियर पाथ, और हम सब सेल्फ टॉट सेल्फ लर्नड अंधों में काने राजे बन के ना बस निकले जा रहे थे मार्केट के अंदर, और थे भी गिनती के 15-20 प्रोडक्ट मैनेजर्स पूरे मुल्क के अंदर. तो इंटरेस्टिंगली इनफ probably one of the most respected product people in Pakistan, Atir Abdur Rauf, who's the VP of marketing at VFairs. He, at various points, different product log, because he was probably one of the most senior product people outside of Pakistan. So everyone reached out to him for advice at some point. So when I became principal PM, which was a slight product leadership position at Cheetah, मैंने reach out किया. मैंने कहा यार कैसे करते प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो चलो पॉडकास्ट से किताबों से बंदा कुछ समझ लेता है, बट हाउ डू यू बिल्ड अ टीम, हाउ डू यू डू दैट, राइट? सो मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी और मुझे मुश्किल हो रही थी उसमें. तो आई रीच्ड आउट टू हिम फॉर एडवाइस एंड वेरियस अदर पीपल रीच्ड आउट टू हिम फॉर एडवाइस एट वेरियस डिफरेंट पॉइंट्स. तो ही हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड एपिक ज़ीरो, एंड उसमें पहली दफ़ा 25-30 प्रॉपर PMs टाइप के लोग, कुछ ऑडियंस में कुछ स्पीकर्स इकट्ठे हुए और एक दूसरे से मिले, तो हमें पता यार वो हम अकेले नहीं हैं, राइट? ओ ये भी एक बंदा है, ये भी मेरे जैसा ही है, इसकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं, इसकी भी वही डिफिकल्टीज हैं. तो गोइंग आउट ऑफ दैट देन वी रियलाइज क्या नहीं, देयर इज अ मार्केट इन द कंट्री फॉर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स. देयर इज अ नीड बिकॉज हम सब जो हैं वो अपने एरियाज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं. डिफरेंट लोग करियर लैडर में डिफरेंट लेवल्स पे हैं, सो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटरशिप, सीनियर लोगों से जूनियर्स तक. एंड द थर्ड पार्ट अपॉर्चुनिटी. सो 2021 वो ज़माना था जिसमें इतनी सारी फंडिंग आई थी मार्केट में, एयरलिफ्ट ने उठाए थे पैसे, बाजार ने उठाए थे पैसे. सडनली देयर वाज दिस होप कि वो पाकिस्तान में देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी कंपनीज, राइट? So there was this hope कि यार the next big unicorn पाकिस्तान से उठेगा. तो बट हमारी हाइपोथेसिस ये थी, क्योंकि हम मार्केट के अंदर बैठे थे, कि यार अगर हम ये जो क्वार्टरबैक टैलेंट है ना, जिनको नहीं पता अमेरिकन फुटबॉल में क्वार्टरबैक जो है वो सेंट्रल पोजीशन प्ले करता है, तो वो टैलेंट अगर नहीं एग्जिस्ट करता मार्केट के अंदर, या अगर एग्जिस्ट करता है तो वो लोअर उतना हाई क्वालिटी टैलेंट नहीं है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी नहीं सक्सीड कर पाएंगी, राइट? तो दैट वाज आवर आइडिया कि यार हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, हम हेल्प आउट करते हैं द एंटायर पाकिस्तानी ऑडियंस और टैलेंट
कि वो एक ग्लोबल लेवल पे compete कर सके, right? So that's what we built. 2021 में we started out. There's a bunch of things that we do. Of course, you know, उसके बाद market crashed globally as well. So, you know, the tech scene is a little, you know, slowed down right now. But I think, you know, the opportunity still exists, right? Huh. We have Cloudways last year, you know, massive exit. We have a bunch of great SaaS startups in Pakistan that are doing great work. So there's still opportunities there. So what do? We do a bunch of things. We have, सबसे पहली चीज़ तो we do meetups, right? So we have meetups across, you know, KLI, and then even in our international chapters as well. Just a meetup, you know, people come together once a month, talk to each other, do a bit of group therapy as well. अपने दुखड़े एक दूसरे को सुना सकें. Do a bit of learning. So we have a specific topic every session as well. Speaker sessions भी हम करते हैं. And do a bit of networking, right? So एक तो वो हैं जो सोच कैफे जिनको हम कहते हैं. The second is we do invest a lot in learning as well. So we do webinars called Sociology. उसमें we bring experts from across the world. So मज़े की बात ये है, for those of you who know Silicon Valley Product Group, Marty Kagan की जो company है, we've had all of their top guys, right? So we've had Marty, we've had Chris Jones, we've had Christian Idiodi, etc., right? We have had Akash Gupta. So we've had nearly, I think Lenny रह गया, but other than Lenny Rachitsky, we've had nearly everyone who's a good voice in product on that particular webinar. And they talk about really important practical, you know, things that product people need to know. तो वो एक webinar है. Then we have also do a lot of, you know, community engagement with founders. हमने एक नई चीज़ start की है, which is we call product Mubtadas. The idea is कि यार, you know, professionals, middle management, इनके साथ तो हम, you know, upskilling का काम पिछले 3-4 साल से कर ही रहे हैं. But we understand कि founders themselves need a lot of help and support within the community as well. So we started this initiative called Product Mubtadas. We started that earlier this year. So we connect, you know, digital product founders in the country, as well as Pakistani founders outside of the country together. We've had, I think, 4 or 5 sessions at this point, meetups with people attending from Karachi, Lahore, Islamabad. Physically, Lahore में होता था पहले, because nearly everyone was in Lahore. We've expanded it. अब इस month हमारा जो है meetup Karachi के अंदर हो रहा है. We've received great responses on that, and we've you know, we've seen कि हाँ, that's also something that the market and the ecosystem really needs. So yeah, those are the few initiatives जो हम Product Soch में कर रहे हैं. Product Soch कौन join कर सकता है? So Product Soch by its उसका कोई minimum bar है, eligibility criteria है या कोई नहीं, भी join कर so सकता है? Product Soch itself, Mubtadas has a more stringent criteria because it's for founders जिनका, you know, जो who are serious about their startup, जिन्होंने कुछ, you know, product market में लेके गए हैं, जो कुछ, you know, post revenue हैं, has serious intent नजर आती है, right? But Product Soch itself is for, you know, general Pakistani talent, right? If you're a student who wants to get into product management, feel free to join. If you're, you know, if you're a junior product professional, mid-level product professional, even if you're a professional who's in some other profession, right? आप designer हो, आप QA हो, आप marketing में हो, and you're just curious कि यार ये product manager करते क्या हैं, right? आप engineer हो जो समझता है वो तो वैसे ही time ज़ाया करते हैं. तो and you want to know कि यार कितना time ज़ाया करते हैं, तो you join Product Soch. There's no barrier to Product Soch. The idea is, of course, हमारा content is more geared towards product professionals. तो it may be कि, you know, बहुत ज़्यादा value नहीं हो for an engineer, for example, right? जो specific engineering frameworks or decision making समझना चाह रहा है. But there is something to learn for everyone, right? Right. तो कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, अगर नहीं, कोई कोई barrier स्टूडेंट भी to ये entry देख नहीं. रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं. Yep. एंड आई थिंक यू गाइस हैव गॉट अ वेरी फेयरली एक्टिव Slack कम्युनिटी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गपशप लगती है, जॉब्स वगैरह, Yep. अप्रेंटिसशिप्स वगैरह का भी लोग पोस्ट कर रहे होते हैं. तो ठीक है, फॉर एनीबॉडी who's listening, you can join it. Yep. So we're on Slack, we're on LinkedIn, and we have a sign-up form जिसके through you get our newsletter and add it to our WhatsApp community as well. So all of those are available. Link description में डाल दें. ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है. we'll add that to the description as well. Okay, ठीक है. तो सही है. So you've been at it from 8 years now? कब 20 स्टार्ट किया था? Career तो 2015 में start किया था. So 15 अच्छा ठीक है. so- So बताओ like walk us through कि यार 15 से लेके अब तक, like how's the journey been? कैसे,
How did you end up here? यार काफ़ी कंफ्यूज्ड जर्नी थी, बट लेकिन मज़े की बात यह है कि एनीबडी हुज बिन इन प्रोडक्ट फॉर फ्यू इयर्स नाउ विल टेल यू कि जर्नी इतनी कंफ्यूजिंग रहती है. एज आई वाज मेंशनिंग, जिस ज़माने में हम लोग ग्रेजुएट किए थे तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी. अब भी नहीं है, तो अब भी कोई नहीं पढ़ा रहा. अब पढ़ा तो कोई भी नहीं रहा. हम तो जब ग्रेजुएट किए थे तो मार्केट में ऐसी पोजीशन भी नहीं थी. राइट. हाँ. सो जब मैं ग्रेजुएट किया था, अगेन मैं तो खैर यूनिवर्सिटी भी गया था और ग्रेजुएट भी किया था, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था ज़िंदगी में मैंने क्या करना है. बिल्कुल बस मुझे ये पता था कि मैंने अब्बू के अगेंस्ट रिबेल करना है, इसलिए मैंने टेक्निकल डिग्री नहीं करनी क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है. और जो कि मैं आज सोचता हूँ कि यार मैंने क्या किया था. मतलब ये भी कोई क्राइटेरिया होता है डिसीजन लेने का, बट टीनेजर्स की क्राइटेरिया काफ़ी मेस्ड अप होते हैं और अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स उनको गाइडेंस भी नहीं देते. बिजनेस मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैंने कहा चलो मैंने बिजनेस डिग्री करनी है. दैट्स अबाउट इट. तो कहाँ से की थी? फास्ट से. लाहौर. फास्ट इस्लामाबाद से. इस्लामाबाद से. सो यू नो बिजनेस डिग्री के दौरान मैं स्ट्रैटेजी का लफ्ज़ सुन लिया, बिजनेस डेवलपमेंट का लफ्ज़ सुन लिया, कहा यार ये कूल लगता है. तो निकले तो वन ऑफ माई प्रोफेसर्स रिक्रूटेड मी फॉर हिज कंपनी. They were running a public sector development consulting type of company. आइडिया वो ये था कि टेस्टिंग, ये जो आपके एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके यहाँ टेस्टिंग और मॉनिटरिंग वगैरह की काफ़ी इनिशिएटिव्स होते हैं. तो उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करें टेस्टिंग डिज़ाइन के अंदर, टेस्ट एग्जीक्यूशन, असेसमेंट वगैरह इस किस्म की चीज़ों में. असेसमेंट्स ऐसे जो Exactly. यूनिट टेस्ट वगैरह टेस्ट नहीं है. हैं? लाइक सॉफ्टवेयर हाँ टेस्टिंग नहीं, टेस्ट दिस इज एजुकेशनल assessments ये वगैरह बच्चों की की बात है, असेसमेंट्स वगैरह इसके. examinations. हाँ, सो मेरा सॉफ्टवेयर से उस वक्त कोई घंटा ताल्लुक नहीं था, राइट. सो हाँ, सॉफ्टवेयर का यहाँ तक ताल्लुक हुआ कि हमने कहा यार कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं टेस्टिंग को एंटर करने के लिए, राइट. और फास्ट का ही एक हमारा बैचमेट था, उसको हमने हायर किया था टू बिल्ड दैट सॉफ्टवेयर. कुछ नहीं पता था वो क्या बताता था हमें कि मैं क्या बना रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आती थी. बिजनेस डिग्री थी, डिडंट नो एनीथिंग, राइट. hired me as a business development guy. So मैं sales, proposal writing, इस किस्म की चीज़ें की. फिर क्योंकि we didn't have those people in our team, तो मुझे project management पे भी घुसा दिया, वो भी करना शुरू हो गया. फिर whenever educational साइड पे कुछ इनपुट चाहिए होती थी वो भी करने लग जाता. तो सडनली आई रियलाइज्ड आई वाज डूइंग वे टू मच. तो आई डिसाइडेड टू मेक अ स्विच एंड देन आई गॉट इनटू अ हेल्थ टेक कंपनी. ये वो ज़माना था, दिस इज 2017, जब देयर वर अ लॉट ऑफ दीज मरहम्स एंड ओला डॉक्स एंड दीज गाइज वर स्टार्टिंग ऑफ. तो देयर वाज अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी दैट ओपनड अप इट्स ओन हेल्थ टेक कॉल्ड प्लीरो. सेम कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह, ये इस किस्म की चीज़. And they hired me to do BD for that. So local market में. में. So this was in Islamabad. उस वक्त ये था कि that was a software services company, classical hardcore engineers थे सारे के सारे. 2-3 ये BD सेल्स वगैरह करने के लिए उन्होंने बिजनेस के लोग उठाए थे. हमारी BD मेंट के डॉक्टर से जाएं, उनसे मिलें, उनको ऑनबोर्ड करें, उनको किस तरह कन्विंस करें कि वो ऑनबोर्ड आ जाएं, राइट. सो 2-3 लोगों की टीम थी. एक हमारी ब्रांड मैनेजर थी, एक मैं था और एक और असिस्टेंट मैनेजर BD था. तो ये 2-3 बिजनेस के लोग थे, बाकी सारे हार्डकोर इंजीनियर्स थे, राइट. सो अब ऑब्वियसली हम लोग सेल्स हमें करनी होती थी, बट वी हैड टू थिंक अ लॉट अबाउट कि यार हम बिजनेस बना क्या रहे हैं, हम लोग, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हम पोजिशन अपने आप को कैसे करें. बिकॉज वो स्किल सेट नहीं था. वो स्किल सेट हमारे पास शायद थोड़ा सा एजुकेशन के थ्रू आ गया हुआ था, तो हम वो उस तरह का काम कर रहे थे. Also like you guys were probably the feedback loop for the product. Exactly. Product team तो थी नहीं ना. मतलब like exactly engineering था और founder थे, right? हाँ, तो डॉक्टर के पास गए, उसने कहा यार ये तो नहीं है इसके अंदर. Exactly. So वो वहाँ पे कुछ पता चला कि यार ये काम मजे का है कि डॉक्टर कहता है कि मैं, मतलब 4 आपने डॉक्टर से बात की, उन सब ने कहा यार मुझे ये अपनी बिलिंग मैनेज करनी हो चाहिए, मुझे उसके लिए कोई चीज़ चाहिए, राइट. या मुझे अपने पेशेंट रिकॉर्ड्स मैनेज करने हैं, मुझे उसके लिए कोई चीज़ चाहिए, या कोई तरीका है कि मैं अपलोड करूँ. एग्जैक्टली. सो वो फीडबैक लूप होता था, हम जाते थे, वापस जाके बात करते थे. फिर इवन बिगर इनिशिएटिव्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल हमें एक चीज़ समझ आई कि यार उस वक्त जो आपका इंडिविजुअल डॉक्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं है इतना ज़्यादा इन अ डिजिटल सोल्यूशन, बिकॉज उसका स्केल ऑफ जो पेशेंट लोड है वो मैनेज कर रहा है ऑलरेडी, राइट. उसका जो खाता, मतलब ओल्ड स्कूल वाला सिस्टम है, उसका एक 2 असिस्टेंट है, वो मैनेज कर रहे हैं, एंड ही डजंट केयर दैट मच.
The marketing thing also doesn't make sense to them because for अच्छे consultants उनकी marketing चल रही हर है, वक्त चल रही है। right? So वो जो marketplace और आपको patient ढूंढ सकेगा, but what we found out was interesting, and again this is a product strategy problem जो बाद में पता चला कि ये भी कोई चीज़ होती है, was कि जो अच्छी market थी वो थी small to medium sized clinics, जो पुराने किसी system के ऊपर pen and paper के ऊपर चल रहे थे, उनको अपनी चीज़ें digitize करनी थी because उनके लिए हैंडल करना मुश्किल था. So we started that pivot कि यार okay, how do we make this more of a SaaS for clinics than a आपका marketplace type of solution, right? So इस किस्म की चीज़ें हमने की. So found that interesting, right? फिर I got approached by an IoT company. Again, this was early days of IoT in Pakistan. ये 2016-17 की बात है 17 में 2017 में. So early days of IoT in Pakistan, there wasn't much happening here. लेकिन उसको काफी हीटेड थी ये स्पेस, राइट? दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हीट थी, राइट? Watson आया था उससे कुछ अरसा पहले. There was this whole talk about Industry 4.0. तो लेकिन पाकिस्तान में there wasn't a lot of work being done on that. So there was a company called Inexiv which set up this entity and wanted to, जो old school systems उनके थे, monitoring और sensors और इस किस्म की चीज़ें की बने थे, लेकिन वो they weren't fully IoT. उससे पुरानी एक टेक्नोलॉजी होती थी M2M, मोबाइल टू मोबाइल के नाम से. So उस पे बने हुए थे. So a professor from FAST ही थे वो, उन्होंने approach किया था to sit down with him and figure it out. They were looking for someone to explore this space and see कि okay यार, these are our strengths as a company. What is the right solution for, what's the next evolution of our solution that makes sense? So अगले 2 साल वो किया. Started off more as a business analyst type of role, थोड़ा सा requirement gathering, इस किस्म की चीज़ें, but quickly transition into title कभी product manager नहीं थी, but बाद में retroactively speaking, when I was leaving the company, I realized I was doing product management all along. So market sizing की, market को figure out किया, customers को figure out किया, solution design करना, solution को की requirement specification करके उसकी एक्चुअली डेवलपमेंट मैनेज करना, उसका रोड मैप मैनेज करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो हमने बड़े मज़े की चीज़ें की जो विच आई एम प्राउड ऑफ टू दिस डे, इवन दो द कंपनी वेंट अंडर. हम लोगों ने अपना एक IoT प्लेटफॉर्म बनाया था विच वाज प्रीटी कूल. मतलब एक मल्टी टेनेंट प्लेटफॉर्म के जो कि किसी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स से इंटीग्रेट कर सकता था ओवर अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. उसके ऊपर उसकी स्ट्रीम के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग, बैचेस के ऑफ डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग, डेटा वेयर हाउस, ऊपर उसके मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस. बड़े मज़े की चीज़ हमने बनाई थी. So where did you learn all of this software stuff? हाँ, so that's when I started getting into the hard side of software, right? Because do you think somebody with a business degree background can learn these things? ये जैसे multi tenant data warehouse तक तो पहुंच ही गए ना. हाँ 17-18 में. यार so देखिए, आज तक मुझे कोड लिखना तो नहीं आता, right? So I can't write code. लिखना नहीं चाहते. मुझे ज़रूरत नहीं है, right? But what I have done over the years is I have understood principles जो हैं टेक्नोलॉजी के. First principles क्या है? Exactly, right? So if I am going to build X, मैं एक डब्बा बनाना चाहता हूँ, right? मुझे उस डब्बे को बनाने के लिए what are the right ingredients that I would need to build that box, right? Logical thinking, right? Which is, what is code other than logic expressed in some sort of language, right? Sure. So how do you express that logic without the code? On a paper. Whatever, हाँ. वो समझ गए, right? और तीसरा ये कि हमारे डिफरेंट कंपनीज में डेव्स के बग्स का कोड पढ़ के थोड़ा बहुत कोड पढ़ना समझ आ गया कि यहाँ पे गंद कहाँ होगा. बट अदरवाइज नहीं, कोड नहीं लिख सकता. बट आई थिंक एज अ प्रोडक्ट प्रोफेशनल यू डोंट नेसेसरली नीड टू नो दैट. व्हाट यू नीड टू नो इज व्हाट इज फीजिबल to a higher level. Of course, आपके engineering लोगों को ज़्यादा पता होगा, but given a problem, what is a feasible solution for that problem, right? मैं ठोकर से गुलबर्ग जाना चाहता हूँ 15 मिनट के अंदर. What's the right solution, right? गाड़ी से जाऊँ, बस से जाऊँ, रिक्शे से जाऊँ, करीम से जाऊँ. What's the feasible solution? So एक तो ये पता होना चाहिए. तो जो options available होंगे टेक्नोलॉजी में वो पता होने चाहिए. दूसरा communication, right? So how do you communicate a set of problems जो exist करते हैं कस्टमर के लिए, उनका सोल्यूशन. हम उसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं, ठीक है? सो एग्जांपल दो कि
कि लेट्स जस्ट गो थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है. सो प्रॉब्लम कस्टमर का लेट्स से ये है कि हाँ, मुझे सारे के सारे टेस्ट, कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है वो कह रहा है मुझे सारे के सारे टेस्ट खुद चेक करने पड़ते हैं और एक एक करके मैं ग्रेड करता हूँ और फिर मैं उनके पहले मैं पेपर पे लिखता हूँ जो भी नंबर होते हैं, उसके बाद मैं जाके सिस्टम में एंट्री करता हूँ. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है. अब एक प्रोडक्ट मैनेजर को किस तरह सोचना चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे तो फिर हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, बिकॉज अब हम इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे. अब हम एक्चुअली प्रोडक्ट थिंकिंग की बात करें, राइट, डिज़ाइन थिंकिंग की बात करें, which is a step before you start communicating a solution. I think पहली चीज़ तो ये है, you mentioned a bit earlier एक statement which is first principles, right? So it's very important कि जब आप customer problem को देख रहे हो तो आप you go back to the first principles of that problem. You abstract out from it कि एक process है, एक बंदा कर रहा है. You don't want to टिपिकली मैंने देखा है जब लोग डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो एज इट इज प्रोसेस को उठा के डिजिटाइज कर देते हैं. दैट्स रॉन्ग, राइट? दैट्स नॉट प्रोडक्ट थिंकिंग, दैट इज आईटी थिंकिंग, राइट? दैट इज बेसिकली कि यार रेट्रोफिटिंग योर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली, कि मैंने सॉल्यूशन तो इधर से ही बनाना है, उसको जबरदस्ती आप पहले सॉल्यूशन के साथ मोहब्बत करते हैं, फिर आप उसको प्रॉब्लम को तोड़ मड़ोड़ के सॉल्यूशन में फिट करने की कोशिश करते हैं, व्हेयरएज इट्स द अदर वे अराउंड, राइट? So let's say for example you have that professor's problem, right? So at its most basic, वो value क्या निकालना चाह रहे हैं? What is the problem that person is trying to solve? The problem that person is trying to solve is कि मेरा एक student का पेपर है, उसका grade एक digital कहीं पे पड़ा होना चाहिए ताकि मैं उसको कहीं से भी access कर सकूँ, right? और उस पर कोई operations perform कर सकूँ, right? That's it. नहीं, so problem थोड़ा different है. Problem थोड़ा different ये है कि वो कहता है यार कि मैं सारों के पहले टेस्ट चेक करता हूँ, उधर उनके नंबर डालता हूँ, फिर मैं बाद में जाके कंप्यूटर पे लॉगिन करता हूँ, वहाँ पे जाके मैं उनके नंबर उधर से दोबारा डालता हूँ. तो ये तो दो दफा मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप उसमें 2 स्टेप्स दरम्यान में से निकाल दें तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो यही चाह रहा है, राइट? कि मैं एक मेरा पेपर है, एक स्टूडेंट है जिसका कोई एग्जाम है, जिसके रिजल्ट्स मैं किसी डिजिटल फॉर्म में जाता हूँ, राइट? So there's a number of ways you can think about the problem. Do we even need a paper to begin with, right? Typically अगर आप IT thinking करें, आप कहेंगे यार वो बना दो, वो जो आपका OCR डाल दो, उसमें वो रीड करके आपको पढ़ा, आपके मोबाइल ऐप बना देंगे, आपने ऐसे OCR करना है, जो नंबर आएंगे और वो. But what you're trying to do is कि वो जो प्रोफेसर अभी करता है उसको आप डिजिटाइज करो. आप पहला सवाल तो ये पूछो, भाई आपको क्या फिजिकल पेपर देने की जरूरत भी है कि नहीं है, राइट? फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे और पीछे जाए. एग्जैक्टली. सो आपको तो ये चाहिए ना कि एक स्टूडेंट का जो असेसमेंट का रिजल्ट है वो ऑनलाइन कहीं डेटाबेस में होना चाहिए ताकि मैं उसको यूज कर सकूं, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी जस्ट पुट द टेस्ट अप ऑन द इंटरनेट, राइट? और ऑन अ कंप्यूटर, वेयरएवर, राइट? एंड वो वहीं पे करे, वहीं पे अपग्रेड करे, यू डोंट नीड टू डू डबल एनीथिंग, राइट? So typically I think the important thing to figure out is, and this is what we usually call discovery in the product domain, कि जब आप किसी प्रॉब्लम स्पेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और यूजुअली आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप कस्टमर एडवोकेसी के लिए हैं, राइट? आप कस्टमर्स के लिए एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे लव इन अ वे दैट वर्क्स फॉर द बिजनेस, राइट? सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट कस्टमर, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज इट दैट दे अल्टीमेटली वो वैल्यू क्या गेन करना चाहते हैं, एंड देन अराउंड दैट स्पेस वो उनकी जनरली कैपेबिलिटी सेट क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग क्या है. हो सकता है आप मुड़ के मतलब हम प्रोफेसर से थोड़ा डिटेल में बात करें तो पता चले यार वो उनको कंप्यूटर यूज़ करना इतनी मतलब क्विज डिज़ाइनिंग के लिए नहीं आता, राइट? सो यू विल हैव टू गो बैक एंड देन फिगर आउट, ओके नहीं यार ये प्रॉब्लम नहीं चल सकती, ये सोल्यूशन नहीं चल सकता, प्रॉब्ली हमें वो OCR वाली चीज़ पे जाना पड़ेगा, विच इज़ ईजियर फॉर देम, राइट? So it's important कि product managers invest करें डिस्कवरी में to first understand the customer, their problem, then get to the solution. तो yeah, it's very hard, है ना? That is a paradigm shift है असल में, perspective shift थोड़ा सा करना पड़ता है. और I think it's also कि like you kind of have to navigate your ego as well. कि यार ये जो आप कहते हैं कि यार ये इस प्रोफेसर को क्या पता, ये देख इतने टूल्स पड़े हुए हैं, ये सर ये पकड़ें आपका मसला हल, राइट? दैट इज़ एन ईगोइस्टिक आंसर टू दिस. एक आइडियल तरीका ये है कि यार आप आएँ, आप उस यूज़र के लेवल पे आएँ पहले तो. आप देखेंगे उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उसको मसले क्या होते हैं. मे बी वही वाली बात है कि उसके लिए शायद इंटरनेट पे पोस्ट करना इतना आसान नहीं है या किसी ऐप पे पोस्ट करना.
सो आई थिंक वो ईगो वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लाइक यू हैव टू लिटरली एम्बॉडी देम एंड देन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एज देम, ये बात सही राइट? मैंने ये देखा है कि हाँ, एक ज़माना था आज से 5-6 साल पहले जब ट्रेडिशनल बिजनेसेस डिसरप्ट हो रहे थे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के लिए, तो दे यूज्ड टू थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ सपोर्ट फंक्शन और बिजनेस तो बिजनेस है, राइट? अब मैंने देखा है थोड़ा सा फ्लिप साइड भी इसकी बनना शुरू हो गई है, विच इज़ जस्ट बिकॉज स्टार्टअप्स आर कूल, हाँ, लोग कहते हैं यार टेक्नोलॉजी, पहले वो आएगी। दे थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी फर्स्ट, दे डोंट थिंक अबाउट द कस्टमर. हर चीज़ को डिजिटाइज कर दो, हर चीज़. दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू. यू नीड टू फिगर आउट, अगेन यू नीड टू डिस्कवर द मार्केट, यू नीड टू डिस्कवर द यूजर. अगर आप ऐसी प्यारी सी टेक्नोलॉजी बनाते हैं विच नोबडी इज गोइंग टू यूज, तो इट्स नेवर गोइंग टू वर्क. वो क्लासिकल एग्जाम्पल है ना, जो HD DVD और ब्लू रे प्लेयर्स की जंग हुई थी, या उससे पहले बेटा मैक्स. और it may very well be that you bring the most technologically advanced product to the market and it just doesn't work because customers ready नहीं है उसके लिए, right? ट्रू. सो यू सेड कि पहली चीज़ तो ये है कि यार आप प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल्स तक जाते हैं. दूसरी चीज़ यू सेड कम्युनिकेशन. Yep. हम कमिंग बैक टू योर जर्नी कि व्हेन यू मूव टू दिस कंपनी जहाँ पे IoT वाला सारा काम कर रहे थे, तो यू रियलाइज कि यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन भी होती है. व्हाट इज दैट? Yep. प्रोडक्ट मैनेजर. So the second part was obviously, you know, एक तो मेरी भी साथ साथ लर्निंग हो रही थी. This was, you know, पहले मैं कंज्यूमर बेस्ड उसमें था. There's a lot of stuff above the hardcore tech of it, whereas this was a hardcore tech platform. आप IoT प्लेटफॉर्म बनाना है, आपने IoT प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशंस भी जो बनानी है. So we built cell site monitoring applications for telecom companies. Telcos. It's a very hardcore alarms, you know, data की processing, analytics, इस किस्म की चीज़ें. Again, it's very hardcore technology related problems as opposed to more consumer facing, attractive design type of stuff, right? तो उसके लिए एक तो मेरी भी learning साथ साथ चल रही थी. तो and again, since we were very close to the cutting edge, तो a lot of times, you know, idea क्या execute हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी एक challenge था. So I quickly realized कि, you know, if I need to figure out, looking at the problems that we were trying to solve for telecom companies, if I'm going to figure out a solution, I need myself to be able to understand the types of solutions we can offer them, right? ठीक है. For example, अगर मेरे पास एक 40,000 सेल साइट्स का डेटा है और स्ट्रीम में आए जा रहा है एवरी मिनट, और उसके दरमियान में कुछ साइट्स के ऊपर, यू नो, रैंडमली दरमियान में डेटा ड्रॉप होता है, पैकेट्स मिसिंग हो जाते हैं नेटवर्क के ऊपर. ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा, यू नो, एग्जैक्ट पूरा डेटा जा रहा हो. इज़ देयर अ वे आई कैन इंटरपोलेट दैट डेटा, राइट? अब दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल प्रॉब्लम विच ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग से मुझे मिलेगा, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार व्हाट इज़ टेक्नोलॉजिकली फीजिबल. इसका एक और बड़े मज़े की एग्जांपल ये, वी वर वर्किंग विद अ बांग्लादेशी टेलीकॉम कंपनी, और उनके जो हम सेल साइट मॉनिटरिंग वाला काम कर रहे थे, उन्होंने कहा यार हमारा एक और प्रॉब्लम है, हमारे साइट में से एसेट्स मिसिंग हो जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, बैटरियाँ निकल गई कुछ. हाँ, कुछ आपको पता ही नहीं है किधर है, क्योंकि देयर इज नो प्रोसेस, तो चीज़ें गायब हो जाती हैं. कार्ड्स इधर से रिमोट एरियाज में भी. एग्जैक्टली. तो उन्होंने कहा यार हमें कोई एसेट मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए. उस ज़माने में वो ये जो आपका AI की साइड के ऊपर वो स्टार्ट हो गया था कूल होना, इमेज रिकग्निशन, राइट? तो लेकिन वो बहुत अर्ली था. वो ज़माना था जब वो, यू नो, बेसिक पैटर्न रिकग्निशन कर लेते थे. साइकिल को देख के ऐसे कहते थे हाँ ये साइकिल है. उन्होंने कहा आप लोग AI यूज़ करें, आप लोग वो एक सर्वर रैक लगा हुआ है, उसमें ऐसे करके कार्ड्स लगे हुए, आप उसको स्कैन करें, आपको AI ने बता देना चाहिए कि कौन सा सर्वर है. अच्छा. सो वो कि भाई वो एक नियरली आइडेंटिकल डिफरेंट मॉडल्स के सर्वर्स पढ़े, हम कैसे कर सकेंगे. अगेन व्हेन दे आस्क यू दैट क्वेश्चन, यू नीड टू एटलीस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार is that even something that we should be investing time in, or is that something that we should, you know, there's some other solution that we should be thinking of. एक तो ये प्रॉब्लम था. दूसरा प्रॉब्लम ये था, again, since we were working on, you know, cutting edge solutions, understanding the solution that we were trying to build engineering side के ऊपर भी was a challenge, right? हमने a solution बनाना है, उसको बनाने के लिए इंजीनियरिंग पे क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, वो ट्रांसलेशन भी डिफ़िकल्ट होती थी. अगेन बिकॉज आई वाज अ नॉन टेक्निकल गाय,
मैं फंक्शनली डिस्क्राइब कर सकता था कि हमें क्या चाहिए, राइट? तो आई हैड टू फिगर आउट कि यार इट्स नॉट इनफ कि मैं डिज़ाइन उठा के दे दूँ, इट्स नॉट इनफ कि मैं बेसिक हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स दे दूँ. I have to get into the depths with the engineering guys, give them precise requirements, at least insofar as कि हम करना क्या चाह रहे हैं, अचीव क्या करना चाह रहे हैं. इंजीनियरिंग सोल्यूशन हमेशा इंजीनियर से आएगा. देयर इज नो बेटर एक्सपर्ट देन एन इंजीनियर, राइट? बट टिपिकली प्रॉब्लम ये होता है कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू आर्टिकुलेट कि मैं क्या सोल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ. इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू गिव देम द राइट गार्ड रेल्स कि यार इसके दरमियान अंदर रहना हमने. तो अदरवाइज वो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टिकटॉक चैनल, मैं नाम भूल रहा है अभी उसका, एक इंजीनियर ही है जो फनी प्रोडक्ट मैनेजर्स की चीज़ें डालता है. आई थिंक TLDV का को-फाउंडर है. नहीं, दैट गाय इज आल्सो इंटरेस्टिंग. देयर इज अनदर वन, याद नहीं आ रहा. तो उसमें वो उसकी PM कह रही थी कि कैन वी बिल्ड आवर ओन OS, कैन वी बिल्ड आवर ओन जीरा, इस किस्म की चीज़ें, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि क्या व्हाट्स द रीजनेबल आस्क दैट गेट्स यू देयर. So communicating the solution to engineers is a very important PM skill. Coding of course isn't, but an understanding of technology जो आपको वहाँ तक limitations. Yes. ठीक है, वहाँ तक लेके जाए. सही है. So फिर then you worked at the IoT company up until 2019 when the company went under. तो not ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि being a product manager, the company going under should just be another day in your life, right? मतलब ऐसे तो होगा, right? It's like for an engineer, the company going under might be end of his world. कि यार ओफ मेरी तो जॉब चली गई, हो गया. लेकिन एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आई थिंक ये इंटरनेशनली भी फेयरली कॉमन अकरेंस है कि यार आप स्मॉल स्टार्टअप कंपनी काम करें, छोटी कंपनी काम करें, तो इट माइट जस्ट हैपन टू यू. हाँ, ऐसे ही है तुम्हारे साथ भी. ऐसे ही था. मैं I've been at 3 companies, 3 of which went under. लेकिन उनमें से I was at one when Violet went under, बाकी 2 went under later, right? After I had left. So yeah, मतलब out of the 5 companies I worked in, 3 companies went under, right? So this is very possible. I think what is important is learning and recognition of responsibility, right? Is there something that I could have done which would have meant that the company may not have failed, right? What were my failures while I was working there? And also थोड़ा सा कंपनी को भी देखना कि यार जनरली कंपनी में क्या फेलियर्स थे which might have, थोड़ा सा retrospective thinking कि यार क्या प्रॉब्लम्स ऐसे थे which caused the company to fail, right? So that कल को, because देखें ना सारी ज़िंदगी किसी ने प्योर इंजीनियर तो नहीं रहना, किसी ने प्योर क्यों, कल को कहीं ना कहीं आप किसी लीडरशिप पोजीशन में होंगे, हो सकता है अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने. सो दोज लेसन्स शुड बी लर्न ताकि एटलीस्ट वो हम सेम मिस्टेक्स ना दोहराएं, राइट? सो फॉर एग्जांपल एट वन कंपनी आई अंडरस्टूड कि यार ओके द फेलियर वाज जस्ट सिंपल कैश फ्लो मैनेजमेंट, राइट? आप कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे रखेंगे कि जिसमें आप not a product related problem, not an engineering related problem, just cash flow management. You could have product market fit and still fail. Right? Because आपने अपने contracts ऐसे structure किए हैं कि आपके receivables साल बाद आ रहे हैं और फंसे हुए हैं, तो आप you just can't, you have to at least run at a break even to keep the company running, right? If you're not funded. ठीक है. तो yeah, those lessons should be learned, right? क्या business model ही सही नहीं था, how do you figure that part out? So I think layoffs से या company under जाने से डरने की जरूरत, मतलब I understand कि it's a stressful time. एकदम से बंदे की तो मतलब एक बंदे की जॉब चली जाती है. मुझे याद है जब that IoT company went under, मैं 2-3 महीने I was just, because again there was like product manager की position exist नहीं करती थी पाकिस्तान में उतना. In fact 2 महीने बाद I met with Majid Khan, who joined Cheetah as its CEO. His brother Ahmed founded the company. So I talked to him and we just clicked. I was looking for a product role. He wanted to hire for a product role. That was the first hire in product at Cheetah, right? उससे पहले भी इस तरह के roles आए थे, but I think formally product management का function जो है वो Cheetah में उस वक्त पे start हुआ था. So it was hard because and no offense to engineers, but आप as a software engineer अगर आप market में निकल तो at least there are 50 different positions open, right?
उस वक्त आई हैड टू वॉक अराउंड द एंटायर मार्केट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि यार कहाँ पे रोल है, एंड 5 आउट ऑफ 10 कंपनीज वुड से यार नहीं, हमारे पास रोल ही नहीं है। हो सकता है उनके पास हो लेकिन उनको पता ही ना हो कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, राइट। एंड ज़्यादातर सर्विसेज कंपनीज थी, देवर वेरी फ्यू स्टार्टअप्स, और फिर स्टार्टअप्स में भी अगेन वो रोल उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इट्स हार्ड। आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट। अच्छा, राइट। सो 2019 में then that company went under, उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद I hunted for 2-3 months, and then I met, like I said, I met Majid Bhai, the CEO of Cheetah, and then I joined them and at the end of 2019. So this was a time period के जिसमें Cheetah had just was going through a revamp. They had काफ़ी सारे उनके verticals थे, उन सबको close करके पूरा एक design रिवैम्प कर रहे थे, अपने ऑपरेशंस को रिवैम्प कर रहे थे, द मार्केट को जिस तरह एड्रेस करना था उनको रिवैम्प कर रहे थे। तो देयर वाज एन एक्साइटिंग टाइम बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ लाइक आपके पास लर्निंग्स है एग्जिस्टिंग बिजनेस की, लेकिन आप एक नया बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच खड़ा कर रहे हैं, राइट। सो वी वर एट बहुत ही छोटा स्केल, राइट, 700 ऑर्डर्स अ डे, एंड हमने कमिटमेंट बोर्ड को की हुई थी, मुझे याद है उस वक्त, कि वी वर गोइंग टू 3x एवरी ईयर और समथिंग। अच्छा, So that was a crazy commitment, right? 6,000 18,000, ठीक है। तो और 5x every year, मुझे it's been a while, but it was a crazy वो कि भाई हम बहुत तेजी से grow करेंगे, and we were trying to launch things left, right and center. Of course, जब मैंने join किया था, they had an existing roadmap, but a few months later, then वो थोड़ा product based होना शुरू हुआ, and then we started doing classical product management. तो that was an exciting time. ज्वाइन करने के 3 महीने बाद कोविड हिट कर गया. I had just moved to Lahore from Islamabad with the family, and घर लिया किराए पे सब कुछ, and then suddenly बंद, and you don't know, right? मतलब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मार्केट का भी नहीं पता था क्या होगा, टैंक तो नहीं कर जाएगी इकोनॉमी, राइडर बाहर, हमारा तो क्विक कॉमर्स का बिजनेस था, राइडर को बाहर निकलने देंगे रोड पे कि नहीं. सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन एज वेल. तो and then you चीते के बाद then you ended up at Glowfish and at your current job. सही है, बड़ी घूम फिर के then you converge to what you actually wanted to do, right? So I think के काफ़ी ज़्यादा product managers who started their careers in late 10s, तो मेरे ख्याल से उनकी इसी तरह की जर्नी है, क्योंकि वो there was no role, और अब thankfully with people like you, अब at least this position exists, people know कि product managers कुछ लोग होते हैं और उसके अंदर भी different roles होते हैं. yep. Great, ठीक है, ज़बरदस्त. And by the way, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में तो नॉलेज पाकिस्तान में लेट आया. आई थिंक प्रॉब्लम तो पहले यूएस में लाइक इंटरनेशनली भी था, उधर बस टाइमलाइन शायद 3 साल पहले या 4 साल पहले हो रही. और दूसरा ये कि पाकिस्तान में तो ये राइट, पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं था प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, बट इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, मोर डेवलप्ड मार्केट्स में, वैली के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा वगैरह के अंदर, देयर इज नॉट अ नेसेसरली अ ट्रेडिशनल जर्नी टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट करियर. पहली बात तो एक प्रोडक्ट मैनेजर एक जूनियर रोल नहीं होता, right. हाँ, सबसे entry level role है ही it's नहीं. not an entry level role, it's a very very mission critical role for a company. तो it's not like you fresh out of university आप foreign product manager बन जाओगे. Of course there is now a career path develop हो रहा है which gets you there, but traditionally तो पूरी दुनिया में होता था कि you could become an engineer, and from engineering you could get into product management, you could get into marketing से आप product manager बन गए, QA से, finance से भी शायद, finance से, right? Because I think जो core skill set है product manager का, that's not necessarily restricted to any particular, the core skill set of product management is not restricted to any particular profession, right? Or any particular degree for that matter. आपने जो मर्जी डिग्री की हो, कोर स्किल तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, exactly, कस्टमर एम्पैथी और कम्युनिकेशन है, राइट, exactly, right, and stakeholder management, which is part of communication, right. हाँ, so yeah, तो even आज भी दुनिया में you talk to a product manager in sitting in Facebook Meta, and you will find के they weren't a product manager हमेशा से, right? So वो कुछ ना कुछ उनका भी background था. So it's fine अगर पाकिस्तान में भी ये होता है. I think it's just important कि लोगों को पता हो ये exist करता है, and how do I get there if I want to get there. हाँ, बिल्कुल सही है, राइट. सो बताएं फिर. सो लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट, मैं 3rd ईयर में हूँ, 5th सेमेस्टर स्टार्ट किया मैंने.
मुझे पता चल गया यार कोडिंग मेरे से नहीं होती, मैंने करनी ही नहीं है, या लेट्स से मैं बीबीए कर रहा हूँ, ठीक है, बीबीए कर रहा हूँ, मैंने सैफ को देखा यार वाह बड़े, ये तो बड़े हाई स्टेक्स जॉब कर रहा है, बड़ा हाई इम्पैक्ट जॉब है, काइंड आई लाइक टू बी समबडी लाइक यू, राइट। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट यार, एज आई अंडरस्टैंड लुकिंग फ्रॉम योर जर्नी, कोई सेट पाथ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है इसकी, इंटरेस्टिंगली एंट्री लेवल रोल भी नहीं है, और लोग भी बड़े कम हैं, तो सारी ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट यू, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अपने थर्ड ईयर के अंदर है और किसी भी डिग्री प्रोग्राम में है, लेट्स से बिजनेस में है, फाइनेंस में है, अकाउंट्स में है, इंजीनियरिंग में है, CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, तो मुझे अपने आखिरी 2 सालों में क्या करना है कि मैं एटलीस्ट जब मैं ग्रेजुएट करूँ तो मैं कहीं ना कहीं करीब पहुँच जाऊँ। सही, आई थिंक पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वेदर आप प्रोडक्ट मैनेजर बना भी जाते हो कि नहीं। जब पिछले 2-3 साल में, द रीज़न व्हाई आई से दिस इज, पिछले 2-3 साल में जब ये स्टार्टअप्स आए थे और फंडिंग आई थी ना, तो एकदम से प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बहुत कूल होना शुरू हो गया था, एंड इट बिकेम वन ऑफ दोज फैड जॉब्स, राइट। जिस तरह एक ज़माने में सप्लाई चेन इंजीनियर फैड जॉब बनी थी, एक ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी फैड जॉब बनी थी, राइट। इवन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, एक ज़माने में not everybody is cut out for software engineering. So in the same way, you need to figure out whether product management itself is something you want to do, or you feel like you have the aptitude for it, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि supposedly उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं, या supposedly उसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर कोड नहीं लिखने का शौक तो वो प्रोडक्ट मैनेजर बन जाए। इट मे बी कि आप you're cut out for something very different, right? तो कैसे बता तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि you find people who are product managers, shadow them. I think you will find कि either doing an internship in your 3rd and 4th year, or just finding someone in your network who you can talk to for a little while, right? Just say कि यार प्रोडक्ट सोच से ही मिल जाए आपको, प्रोडक्ट सोच से शायद मिल जाए, right? And spending a bit of time with them, seeing their day to day, and then figuring out, यार, is this something I really want to do, or feel like I can do, or is this something that I'm just in मैं hype में उसके पीछे चला गया हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि is this something that I want to do or not. दूसरी चीज़ ये है कि क्या मेरे नेचुरल एप्टीट्यूड या मेरे नेचुरल स्किल सेट दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एट, क्या वो इसको सप्लीमेंट करती है कि नहीं, तो वो क्या 3-4 स्किल्स हैं जो आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए नेचुरली। आई थिंक देखें, इस पे नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट चल जाएगी कि एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, राइट। सो पहली बात तो ये है कि क्या आप एक स्ट्रक्चर्ड थिंकर हैं या आप एक अनस्ट्रक्चर्ड थिंकर हैं, इसको एक्सप्लेन, राइट। सो इसमें सो लेट्स से मुझे कहा जाता है कि यार एक कॉफ़ी का कप बनाना, मग बनाना, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, हाउ डू आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैं क्या मेरे पास मैं फिगर आउट करता हूँ, चाहे अगर कॉफ़ी का कप बनाना है, मैंने कॉफ़ी कौन सी लेनी है, मैंने मग का क्या साइज़ है, मैंने पानी कितना लेना है, कितना गर्म करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक फ्रेमवर्क बना के क्या मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, या मैं, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट, क्रिएटिव लोग भी होते हैं जिनका दिमाग स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलता नहीं है, जो इधर उधर करके दे माइट स्टिल मेक अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी, बट उनका दिमाग व्हेन यू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम उसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन करके स्ट्रक्चर करने की कोशिश नहीं करता, राइट। थोड़ी 2-3 और एग्जांपल्स दे दो इफ पॉसिबल। सो फॉर एग्जांपल, हाँ, लेट्स से आपके घर में बिजली चली गई है, अब इसकी स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड क्या तरीका होगा सॉल्व करने का? सो स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड तरीका ये होगा ना, आप अगेन you try to figure out if your thinking is structured, तो आप ये करने की कोशिश करते हैं, अच्छा यार बिजली के पॉसिबल रीजंस क्या हैं जाने के। आपने कहा ओके यार, घर हो सकता है घर में भी फायरिंग का मसला हो, आप गए, आपने नीचे चेक किया, यार वो सर्किट ब्रेकर तो नहीं बंद हुए हुए, टेस्टर लेके ट्राई किया कि ये, वैसे मुझे इसलिए ज़्यादा मज़े का प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि मेरे अब्बू ने जो है ना, हमें इंजीनियर थे तो बचपन से हर चीज़ खुद चेक करनी है का दिमाग में डाला, स्ट्रक्चर्ड थिंकर।
तो टेस्टर लेके चेक किया यार मेन से बिजली आ भी रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ओके चलो फिर यार। हालांकि आजकल तो हालात ये है कि बंदा सब अज्यूम यही करता है कि पहले से पीछे से ही बिजली नहीं आ रही होगी, बट फिर आपने कहा ओके यार लेस्को को फ़ोन करते हैं। पहले आपने ये भी देख लिया ना कि हम सायों में आ रही है किसी की नहीं आ रही है, वो यस हमने यू देख राइट लिया, यू फिर राइट हमने यू लेस्को राइट। फोन कर लिया। सो लेस्को फ़ोन कर लिया। अनस्ट्रक्चर्ड वे क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड वे पोटेंशियली ये होगा कि यार यू नो पहले से ही पहले प्रॉब्ली अज्यूम कर लिया कि यार लोड शेडिंग ही होगी, बिजली गई होगी, खुद ही आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी, राइट। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बैश दैट वे ऑफ थिंकिंग, आई एम जस्ट सेइंग टिपिकली कुछ लोग होते हैं जो आई वुडंट से टाइप ए हैं, बट व्हेन दे सी अ प्रॉब्लम इमीडिएटली दे वांट टू ट्राई टू ब्रेक इट डाउन एंड सॉल्व इट, राइट। जो नेचुरली एनालिटिकल एग्जैक्टली थिंकर्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो I think for a product manager, it is super, super important to be analytical, to have structured thinking. That's an important part of it, right? Do you have any tips on how to develop it या how to improve it? कोई किताब है वगैरह? Any resources that you would recommend? I think there are a few I can. जब इस वक्त doesn't come to mind, थोड़ी देर तक मैं add सही, करता हाँ, हूँ। you can just add that in. ठीक है, फिट है, सही है। ठीक है। Okay, पहली चीज़ ये है, structured thinker होना चाहिए। I think the second thing that is super important is, I think we talked about it a little earlier, communication, right? So some people are by nature extroverted होते हैं, ठीक है? They like talking to people, they like discussing things with people, they like arguing with people, even of course in a diplomatic way. आप कच बहस हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ज़िंदगी गुजारना. But yeah, so if you're a strong communicator, so that can happen. However, there is an aspect to it which is nature, which is, are you extroverted or not? And are you naturally a gifted speaker or a communicator or not? But it's also a skill that to a large extent can be acquired. So, for example, you're in university, इतने एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपको मिल जाते हैं कि जिनसे आप वो स्किल को डेवलप कर सकते हो. आपने डिबेट्स की, आपने मॉडल यूएन किया, आपने इवन इवेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व हुए और कोई काम किया. जैसे there's some even मेला happening, right, at university. आप उसमें कहीं organizer रख गए, right? So you have to talk to 5 different people. You're dependent on them. आपने काम किया, निकाल करवाया, right? So communication in that sense is super important. And I think that also helps you with this type of activity in university. Also helps you because university में आपके पास वही problem होता है जो product manager के पास होता है. आपने किसी से काम करवाना है लेकिन आपके पास उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, राइट. प्रोडक्ट मैनेजर का भी यही प्रॉब्लम होता है, राइट. इंटरेस्टिंग एनालॉजी, हाँ. तो प्रोडक्ट मैनेजर ना इंजीनियर का लीड है, ना क्यूए का लीड है, ना डिज़ाइन का लीड है. वो दरम्यान में बैठ, और ना स्टेक होल्डर में से किसी का मार्केटिंग किसी का लीड है, राइट. ही हैज़ टू सिट इन द मिडल एंड कन्विंस एवरीवन एंड अलाइन देम कि हाँ भाई ये हम सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे और ये इस टाइम पे आएगा, राइट, विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी. इंटरेस्टिंग. एज अ स्टूडेंट आप ये खुद सोच लो, राइट, आपने अपने FYP भी करना होता है, आप 4 और लोगों पे डिपेंडेंट होते हो. And you have absolutely no authority over them. And you also probably have to convince people जिनकी authority आपके ऊपर है. Exactly. Teacher से communicate करना है, exactly. HOD से करना है. So I think if you put yourself out there, if you exert yourself instead of feeling oh यार मैं तो introverted ही हूँ, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊँगा. You actually put yourself out there, try it out. I know people who are introverted but are great PMs because they just put in that effort, right? दूसरा, I think introverted also helps because introverts have better फोकस मोड, राइट. जब आपने डीप फोकस करके काम करना होता है, एक्सट्रोवर्ट्स का मसला ही होता है, हमें सोशल एनर्जी चाहिए होती है. हम थोड़ी देर फोकस करके काम करते हैं, फिर हमें और लोगों से बात करनी होती है, एंगेज करना होता है. सो इन सम वेज बीइंग इंट्रोवर्टेड हेल्प्स एज वेल, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर लेते हो. दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल, राइट. ठीक है. आपने स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, एनालिटिकल, देन कम्युनिकेशन स्किल्स. आई थिंक द थर्ड थिंग दैट आई विल ऐड टू दिस, which is somewhat correlated, but not exactly, is a sense of curiosity, right? A product manager, especially अगर आप किसी किसी नई स्टार्टअप पे काम करें, किसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, right? Which is typically even अगर आप टिपिकल प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं तो आपने इनोवेशन तो लानी है ना. Exactly, right. That's disruptive, right? मतलब आप चाहे एक फीचर पे भी काम करें, at every point you're trying to bring something new, right? Because अगर आप simply किसी दूसरे प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हो तो that's never going to work, right? तो in order to do that, you need to have a curious mind. Crazy
curious mind, हाँ. यस कि यार ओके अगर मैंने ये काम करना होता तो दुनिया इमेजिनेशन की जो एक स्किल होती है ना कि यार और कौन किस तरह काम अगर कर सकता है इस मग का हैंडल यहाँ पे होता, even something like that, right? exactly right. So if you're not curious, if you're not imaginative, it's very hard for you know you get stuck in that trap कि यार okay मैं 4 references देखूंगा, मैं उन्हीं से देख के ना एक amalgamate बना के fit कर दूंगा instead of building something truly original. And most typically the original solution is the one that is best. Because no two problems are exactly the same. No two types of customers are exactly the same. You always need something very tailored to that particular problem. सही है, हाँ. I think ये तो अच्छा. I think ये 3 core अगर हम naturally क्या बंदे की personality होनी चाहिए या naturally क्या skill set होना चाहिए, तो I think those are the 3 that are most important. और हाँ, वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली तो डिबेट है ही कि आप इनको डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई फाउंड इज के फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स yields far better results than fighting your weaknesses. Like I don't know, weakness को आप fight करके शायद आप 2x या 0.5x कर लेंगे उसे, आपका multiplier कम हो जाता है. हाँ, strength पे focus करें, maybe you can just go 8x. तो like मेरा तो ये experience रहा है. ये बात सही. Alright, ठीक है. सबसे पहले मैंने ये देखना मेरा एप्टीट्यूड है इन चीज़ों में. दूसरा यूज साइड के प्रोडक्ट सोच से ही किसी से रीच आउट करें, मे बी उनसे कोई 15-20 मिनट की कॉल रख लें या उनसे कहें यार मैं 3 दिन के लिए आपके साथ आके बैठ सकता हूँ. whatever, figure out. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप ये शायद कर सकें नेगोशिएट उनसे, ठीक है. या यू कैन डू दैट. और आखिरी 2 सालों में मैंने पढ़ना क्या है, like what do I search on the internet? I think इसमें of course मतलब 2-3 चीज़ें हैं. Of course there's a number of different ये आपके you know tutorials and courses, product managers for beginners. And डिज़ाइन थिंकिंग के भी बहुत सारे हैं. प्रोडक्ट स्कूल के काफ़ी बिल्कुल यू नो इनिशियल लेवल के कोर्सेज हैं. एंड देयर बुक्स एज वेल. आई थिंक अ फ्यू गुड बुक्स दैट आई वुड मेंशन जस्ट सो दैट यू गेट स्टार्टेड ऑन द फंडामेंटल्स. एक तो प्रोडक्ट स्कूल की प्रोडक्ट बुक है. दैट्स अ गुड प्राइमर ऑन के यार ओके यू नो जनरली अगर आप एक प्रोडक्ट बनाने जाते हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट यू नीड टू डू, राइट. कुछ conceptual चीज़ें भी हैं. There's a few books by Marty Kagan which are product managers की Bibles हैं, right? So Inspired is super important. There's a couple of other books which are super useful to understand the philosophy of building products, right? So Hooked है by Neer Eyal. That's a great book, right? And then there's a few others as well. I think समझने की ज़रूरत जो 2-3 चीज़ें हैं. एक तो like I said, fundamentals, right? What does a product manager do? And what does the role entail? What are the pitfalls? What should we look out for? ताकि you get a good sense of कि यार okay, these are the skills and processes that and you know ways of working that I need to have as a product manager. दूसरी चीज़ conceptually यार अगर हमने एक product market में लेके जाना है और किसी को बेचना है और किसी customer के लिए, तो उसमें you know why एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता. स्टोरीज पढ़ना. एग्जैक्टली, राइट. एंड ये बुक्स अच्छा प्राइमर दे देती हैं आपको इसके ऊपर. आई थिंक द थर्ड थिंग इज कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट. नॉट टू टूट आवर ओन हॉर्न बट you know there are great communities out there. Product Soch hai for Pakistanis, that's great. Product School hai, that's an American one. Harder to relate, that's why we brought Product Soch, because Valley के अंदर ecosystem बहुत different है यहाँ से. But I think for a fresh person जो अभी स्टूडेंट है, to get a feeler, you know, with the caveat कि भाई जिस तरह वैल्यू में प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है उस तरह बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है. But that doesn't necessarily work here either, right? तो इधर के लिए different problems exactly. But I think आपको एक आइडिया एटलीस्ट मिल जाता है कि आइडियल क्या है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, राइट. And then there's a few other product folks है, product people है. There's a bunch of really nice communities. पाकिस्तान के अंदर ही है. Not in Pakistan, but generally in the remote world. communities. तो उनके साथ engage करें. Look at the conversations. People have AMAs, webinars, so many things. Just get I think absorbing yourself into it gives you a lot to understand what that life looks like, and also to start acquiring those, you know, that knowledge of कि मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है as a product manager. And I think the fourth thing is build something. अच्छा. I think that's, I'm not saying, you know, necessarily कि आप अपना पूरा startup बनाएं, but what I'm saying is find something that excites you.
find a problem that excites you. It may be anything, right? It may be, I don't know, you really like gaming, right? And you want to build a game and you find someone who's if you're not a game developer. अच्छा, ये तो टेक की एग्जांपल है. आई थिंक आउटसाइड ऑफ टेक भी चल हाँ, सकता है, राइट? सो आप गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन है, आपको एक माउस पैड आपने नया इमेजिन करना है. या और या आप कोई मतलब आप वो बनना चाहते हो, गेम स्ट्रीमर बनना चाहते हो, और आप कहते हो यार चलो यार मैं अगर मैं गेम इवेंट रखूं तो वो कैसे होगा, right? That is also a product. That's a product by itself, right? So there's 50 different things. मतलब हम गेमिंग में बहुत ज़्यादा चले गए. But यार टी-शर्ट्स का बिजनेस आप कर लो. आपको यार कि मैंने टी-शर्ट्स के लोगों की प्रॉब्लम समझनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, एक निच की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. हाउ कैन आई डू दैट? अच्छा, if you want to get into digital product management, of course, मतलब try out something small, right? And by the way, मैं एक प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ हमारे यहाँ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में कि हम बहुत डिपार्टमेंट्स के अंदर फंस जाते हैं, right? एक बिजनेस स्कूल का लड़का है, वो CS वाले लड़के से उसकी उस तरह सलाम दुआ नहीं होगी, अब हो भी जाएगी तो बस सलाम दुआ ही होगी. कोई कोलैबोरेटिव काम नहीं करते आपस में. फाइंड समवन, राइट? मतलब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो यू विल फाइंड के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस स्कूल, फाइनेंस, व्हाटएवर, राइट? मतलब आपको 4-5 लोग बड़े मज़े से आप इकट्ठे कर सकते हो. A, make friends because it always helps to learn from someone who is not of your discipline. B, figure out with those friends and do something together. What that will help you is कि it will help you truly understand कि यार एक product को build करने में और उसको viable बनाने में क्या क्या effort लगती है, क्या क्या चीज़ें लगती है. That doing से ज़्यादा आपको learning कभी भी किसी भी theory से नहीं होगी, right? So practical learning really helps, and it can be something as small as even आपके अपने फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, राइट? योर डैड हैज़ अ बिजनेस, ही नीड्स समथिंग टू help his business out, right? Maybe you can build something that helps him do that, right? And again, it doesn't necessarily need to be something that is production enterprise grade type की चीज़. आप Microsoft से compete नहीं कर रहे. छोटे से scale पे try to build something. Yeah. And then you will get a grip on what how products are made. Typically, the best product managers that I've worked with have had an entrepreneurial spark. शुरू में यूनिवर्सिटी के एंड में बिल्कुल ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने they tried to start something up because वो ड्राइव जो है ऑफ वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो एक्चुअली कुछ बिल्ड करके उसको ऑपरेशनलाइज करना, उसको मार्केट में एक्चुअली बेचने की कोशिश करना गिव्स यू अ लॉट ऑफ लर्निंग्स ऑन हाउ पीपल थिंक. इट मेक्स सेंस बिकॉज अगर आप एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड थिंकर, एक अच्छे कम्युनिकेटर और एक क्यूरियस बंदे, ये तीन चीज़ें एक बंदे में अगर हों तो वो नेचुरली दे वुड ग्रेविटेट टूवर्ड्स एग्जैक्टली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और लॉन्चिंग अ बिजनेस और व्हाट नॉट, राइट? Yes and no. Unfortunately, I think problem ये है कि even though those qualities exist in people, even now there's a large proportion of graduates who have been sort of brainwashed into thinking कि यार the most stable career is the best career. आप Nestle, P&G, Unilever इनका आप इंटरव्यू दो, अगर आप हाई परफॉर्मर हो और आप वहाँ लग जाओ और आपकी ज़िंदगी पार्क हो गई वहाँ पे जाके, राइट? या आप एक मोर प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड और एक पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड, आप CSS दो और आप गवर्नमेंट सर्वेंट लग दो और आप बैठ जाओ, राइट? विच इज़ फाइन, अगेन नॉट bashing it, but I think the proportion of people who have the aptitude but don't have this fear कि यार मैं इस टेक की मार्केट में, स्टार्टअप की मार्केट में, एंटरप्रेन्योरियल मार्केट के अंदर नहीं जाता बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, वो बहुत ज़्यादा है, राइट? देयर इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल. अब मैं सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, राइट? हाउ मेनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डू यू नो हु वुड प्रेफर गोइंग टू अ स्टार्टअप वर्सेस अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, राइट? टॉप टियर दोनों को उठा लें. लेट्स से यू हैव Ubisoft at one end and you have Careem at one end.
It's a good competition नहीं, करीम को तो हम एक सही कंपैरिजन शायद ना हो, क्योंकि करीम इज टू बिग टू लाइक ऑफ अ कंपैरिजन, राइट? हम Sure. छोटी कंपनी कर लेते हैं Sure. कोई भी, हाँ मे बी let's say, 10-12 लोगों की कोई कंपनी है, हाँ, whatever, no, हाँ Ubisoft is pretty huge, but नहीं, बट हम करें ना स्टार्टअप हाँ, वर्सेस, and plus it's UAE, right? So वो वाला भी एक फैक्टर आता है. Because for example, you say, you know, working at Ubisoft versus working at, I don't know, maybe Daraz, राइट, right? Daraz is pretty huge, कंपैरेबल, but you know, would an engineer who comes out of Fast or LUMS want to work there? Let's put aside the culture for now, right? तो लोगों के उसके culture से issues होते हैं, but I think people have this idea कि यार मैं stable job, मुझे startup में जाऊँगा, tech company में जाऊँगा, lay off हो जाएगा, risk होगी. Although you will notice कि the जो multiplier effect है in terms of growth, in terms of learning, in terms of you know, even wealth, right? वो startups में कहीं ज़्यादा है from your more stable career options, right? And that's वो high risk high reward वाली game है ना? बिल्कुल ठीक है. ऑलराइट, सही है. सो यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने ये सारा कुछ कर लिया. अब अगर मैं ग्रेजुएट कर गया हूँ, एंट्री लेवल पोजीशन तो है नहीं, अब क्या करना है मुझे? अच्छा, वैसे अब there are a few entry level positions opening क्या up. कहते हैं उन्हें? So the few positions that are opening up now is एक तो product analyst, ठीक है, ठीक है, वो होता है एक associate product manager होता है. Those are more oriented for junior level people, right? Company to company vary करता है, because for some company, जैसे हमारी company है Glowfish के अंदर, we don't hire even APMs बिल्कुल fresh out of university, right? कुछ हम ये ज़रूर कर लेते हैं कि if you're fresh out of university and you know we find your CV is interesting and you've done some interesting work, so we take you through an internship, long-term internship leading to an APM type of program. But हम directly PM fresh नहीं उठाते. But there are some companies who do that, right? However, again, I feel कि what these roles typically do is, because product management एक generalist role है, you know, you थोड़ा सा master of none है और jack of all trades है. It touches a lot of different areas. It is a bit of a, you know, इसके pros and cons हैं, from taking a pure product related position to actually, you know, doing something not completely different but adjacent, and then switching into product management. right. So for example, if अगर आप engineering में चले जाते हैं, right? आपने 2-3 साल as a software engineer लगाए हैं. So if you then transition into product management, that's a, you know, there is a way to do that, you know, work at a product based company, अपने product org के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके साथ डिस्कस करें कि आपका eventual career path ये है. But when you go from engineering to PM, you suddenly have a lot of, वो जो हमने थोड़ी देर बात कर रहे थे कि technical know-how आपके पास है, and you have 2-3 things other to cover, right? So आपके एकदम से एक area में depth है. Same if you come, for example, from a design background, right? आपकी suddenly design, आपने 2-3 साल 4 साल design में लगा लिए, and now you transition into a product management role, you now have a great view of design. So, for example, at Glowfish, one of our senior PMs, you know, has a design background, right? And बल्कि अब कभी कभार वो हमारे डिज़ाइन लीड के साथ कहते हैं, यार मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ, मुझे ना मूड हो रहा है दोबारा से डिज़ाइन में घुसने का, राइट? सही है. तो इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, 2 तरीके हैं. एक तो ये है कि आप ये इंटर्नशिप प्रोग्राम से यू ग्रो अप टू दैट रोल. ऑफ कोर्स अगर आपने यूनिवर्सिटी में किसी के साथ नेटवर्क किया हुआ है और आपने उनसे हेल्प की है, मे बी दे कैन जस्ट हेल्प यू, प्लेस यू इन अ कंपनी जहाँ पे वो नया रोल निकल रहा है. या कुछ ऐसी जॉब्स होती है जो इंटरनली एडवर्टाइज होती हैं, बाहर तो होती नहीं एडवर्टाइज, आपका वो नेटवर्क है. And again, community engagement will help there. जैसे हमारा Fraud Search के ऊपर एक channel है which is for jobs, and people reach out to us, we post it on their behalf, people directly post there. So ये चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं. कई ऐसी jobs हैं जो LinkedIn पे नहीं होती, right? So it's better. And again, creating that network, you're right. आप internship करें, companies में लोगों से बात करें. That old model of company career fair पे आएगी और आपके CV लेगी. That doesn't work in today's world. आपको खुद जाके नेटवर्किंग करनी पड़ती है, इवेंट्स पे जाएं, लोगों से मिलें. So एक तरीका वो है, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक एडजेसेंट या like you should be in that general area. आप इंजीनियरिंग है, QA में है, या
आई डोंट नो Design, प्रोजेक्ट marketing even. मैनेजर हैं हाँ, शायद, project manager. व्हाटएवर, लेकिन आप जनरली उस स्पेस के अंदर हैं जहाँ पे Yeah. प्रोडक्ट्स बन रही हैं, प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, Yeah. एंड देन जैसे आप मास्टर ऑफ वन होते हैं 3 years के अंदर, 2-3 Yeah. साल के अंदर, आप यू कैन जस्ट टेल एनीबडी कि यार मेरा ये करियर पाथ है, मैं ये चाहता हूँ ये करना. Yeah, and you will find के you piggyback that because जब वो बंदा जो फ्रेश आया था उसको 3-4 चीज़ें इक्वली सीखते जानी थी, जबकि जब आप एक सेपरेट रोल से आते हो तो यू सडनली यू हैव वन एरिया कवर्ड, यू हैव 2-3 things to learn. That is an advantage that you have. So both options are valid. या ठीक है, ज़बरदस्त है. आई थिंक दिस इज़ अ गुड पाथ. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दिस, कि स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस दैट वुड हैव हेल्प्ड यू व्हेन यू वर अ स्टूडेंट? I think coming back to the original point, right? एक तो पहली बात ये है, I think it's also थोड़ा सा I feel like I'll sound old while saying it. बट हमारे जब हम लोग ग्रेजुएट होते तब भी हम एक उम्र का तकाजा भी होता है कि और थोड़ा जनरेशन्स का भी तकाजा होता है कि इम्पेशंस थोड़ी ज़्यादा होती है उस वक्त. व्हेन यू ग्रेजुएट और व्हेन you're in university, you see these examples of people who are either celebrities a couple of years older than you or millionaires a couple of years older than you, suddenly startup founders. And if that ends up being your journey, that's great, that's awesome, more power to you. But it success for most people takes time. Okay, so it's fine if you don't have everything figured out by the time you graduate. Take it from me. If you keep trying to figure it out, अगर तो आपने गिव अप कर दिया ना, आपने कहा यार ठीक है बस मैं अपना दिमाग बंद करके बस किसी पटरी पे चल जाता हूँ और चलता रहूँगा, तो of course nothing works out, right? But even if you haven't figured everything out at the time that you graduate or are graduating or about to graduate, it's fine. Keep searching. You will find what it is you're looking for. But again, when I graduated, what I do now didn't exist in the market at that time. So even if I had known that I wanted it, there would have been no opportunities for me. ठीक है. So sometimes that happens and it's completely fine. However, I think it is important कि आप ये ज़रूर figure out करो कि आपने किस space के अंदर काम करना है, किस nature की job करनी है, right? या job भी करनी है कि नहीं करनी है, right? Business करना है, whatever. But क्या करना है, I think is still important. I think हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की decisions जो है ना, वो outsource करके बैठे होते हैं. हम अपने दोस्तों को आउटसोर्स कर रहे होते हैं, यार मेरे आगे पीछे क्या चल रहा है, राइट? हम अपने माँ बाप को आउटसोर्स करते हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या कहा है, राइट? माँ बाप की फरमाबरदारी से कोई अगेंस्ट नहीं है, बट जिस रैपिड पेस पे ग्रो कर रही है ना दुनिया, हमारे माँ बाप की दुनिया में जो करियर डिसीजंस थी वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम हमारी टू आजकल की. ऑल ऑफ दीज आर वेरी डिफरेंट, राइट? सो फिर हम आउटसोर्स कर देते हैं जनरली सोसाइटी में क्या इन चल रहा है, राइट? सो हम बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर लेते हैं. अपना करियर फिगर आउट करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मेंटल एफर्ट अपना to figure out what makes sense for you, what works for you, and what you need to do to get there. Yeah. And to be very, very honest, given jitni globalized दुनिया हो चुकी है, the competition is far higher today than it was 10 years ago, 15 years ago. Yeah. Right. And nobody is coming to save you. Exactly. देखो, at the end of the day, you'll find people who are there to help you, reach out a helping hand, but you also have to be seeking, right? आपने अगर हाथ नहीं बढ़ाया हुआ, आप नहीं कुछ ढूंढ रहे, तो कोई और आके उठा के तो नहीं आपको लेके जाएगा. Right. बिल्कुल ठीक है. I think that has been a consistent theme of your life as well. जो तुमने पूरी stories मुझे सुनाई, I can literally see that in your story as well. ठीक है, fit है. I think great conversation. I think a lot to learn for a lot of people here. And with that, thank you so much for watching this episode. अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो हमने नीचे गेस्ट रिकमेंडेशंस का एक सेक्शन शुरू किया है. आप नीचे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं. अगर आप खुद या आपके कोई जानने वाले जो आपको लगता है कि उन्हें हमें यहाँ पे बुलाना चाहिए, हम उनसे सीख सकते हैं, तो आप फॉर्म फिल करें एंड वीड बी हैप्पी टू हैव देम हियर.
उसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, गेस्ट रिकमेंडेशंस, फीडबैक, सजेशंस वगैरह सारा कुछ डिस्कस करते हैं. और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.